Okay, hello everyone, welcome back to Class Azad, welcome to our channel, welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is physical property of the salt. Physical properties of salt. At the previous lecture we have discussed that what is salt. Salt is an ionic compound, all those compounds having positive negative charges except H plus and OH minus, like NaCl, calcium carbonate, calcium nitrate, potassium nitrate, aluminium sulfate, aluminium chloride, means all those compound is salt having two charges, positive and negative, except H positive and OH minus. Why? Because the compound having H plus ions, they are acids, and the compound having OH minus ions, they are base. So that's why except H plus and OH minus, all the compound having both the charges, they will be ionic compounds, so they will call salt. Today we will discuss the physical property of the salt. Salt have four physical property, very important exam point of view. The first physical property of the salt that the salt have high melting and boiling point. कि साल्ट का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है. क्वेश्चन इज दैट कि साल्ट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि साल्ट इज आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड आर दोज हैविंग आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड चूंकि एक स्ट्रांग बॉन्ड है, इट्स वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, इसी वजह से ionic compounds having high melting and boiling point. For example, melting point of NaCl 801 degree and boiling point of NaCl 1413 degree. So the question, why they have high melting and boiling point? Because a strong force, that is ionic bond. So all the salt have a high and melting and boiling point. This is the first physical property of the salt. Second, salts are soluble in water. Why? Because salts are a polar compound and water is polar, and the principle of solubility, that is like dissolve like. Like dissolve like means that polar compound will dissolve in polar solvent and non-polar compound will dissolve in non-polar solvent. So salt chunke sare polar है due to ionic bond. They have positive and negative charges, and water is also polar due to electronegativity difference. So according to a principle of solubility, like this or like, so it means salt soluble in water because both are polar. Another physical property of the salt, that is called water of crystallization. What do you mean by water of crystallization? Water of crystallization का मतलब है, पहले crystallization का मतलब है the formation of crystal. देखिए जितनी भी salts है, they are crystal, they are solid crystal, और इन्हीं solid crystal के surface के साथ water attach होता है by weak intermolecular forces. The number of water molecule attached to the surface of
crystal that is known as water of crystallization. तो साल्ट चूंकि क्रिस्टलाइन होता है तो इनके सरफेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। साल्ट के सरफेस के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के सरफेस के साथ कितने वाटर अटैच है? 5। सो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट ऑफ द कॉपर सल्फेट? 5। जरूरी नहीं है हर साल्ट के सरफेस के साथ वाटर अटैच होगा। NaCl साल्ट के सरफेस के साथ तो कोई वाटर नहीं है। सम साल्ट जिसके सरफेस के साथ वाटर अटैच होता है बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसा कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O। वो जो नेक्स्ट पढ़ेंगे पोटाशियम 24H2O। मतलब मुख्तलिफ वाटर अटैच होते हैं वाटर के सरफेस के साथ। जितने वाटर अटैच होते हैं साल्ट के क्रिस्टल के साथ सरफेस के साथ, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट के साथ 5, सो दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 5, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये पूछे कि 5 में कॉपर के सरफेस पे कितने हैं और सल्फेट के सरफेस पे कितने हैं, देखें 5 में से 4 जो है वो कॉपर के सरफेस पे हैं और सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल 5 में से सल्फेट पे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो नंबर ऑफ वाटर अटैच होते हैं वो डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशियो पे। चार्ज टू साइज रेशियो पे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब है कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही मोर वाटर सरफेस पे आएंगे। फिर आप कहेंगे सर कॉपर पे क्या चार्ज है? +2, सल्फेट पे -2। तो चार्ज तो दोनों का सेम है, जस्ट प्लस माइनस है। जी चार्ज सेम है, एक पे भी 2 है दूसरी पे भी 2 है। लेकिन आगे देखो साइज के साथ इन्वर्स है। जितना साइज कम होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो कॉपर का साइज छोटा है, सल्फेट तो बहुत बड़ा साइज है। तो इसी वजह से यहाँ पे 4 वाटर है और यहाँ पे 1 ही वाटर है। क्यों? बिकॉज साइज कम है कॉपर का। सारी बात है जितना साइज कम होता है तो उतना ही जो है क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आते हैं। सपोज एक मोटी औरत है, उसके घर के लोग कम होते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी प्यारी सी सो क्या होता है? सो सेम लाइक दैट कि साइज़ जितना छोटा होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा आएंगे और जितना साइज़ बड़ा होगा कम आएंगे। तो कॉपर सल्फेट में जो 5H2 है उनमें से 4 कॉपर पे हैं और 1 सल्फेट पे है। बात समझ आ रही है ना सबको? एंड लास्ट प्रॉपर्टी, salts are neutral compound। salts न्यूट्रल कंपाउंड है। यहां आप लोग हैरान हो जाएंगे सर ये क्या कहते हो, salts न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो हम उसको कहते हैं जिसमें चार्ज ना हो। आपने खुद ही डिफाइन किया था साल्ट्स को कि साल्ट वो होते हैं जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और अब कहते हैं न्यूट्रल है। देखिए न्यूट्रल 2 तरह का होता है। बात आपकी ठीक है, वो भी न्यूट्रल होता है जिस पे कोई चार्ज ना हो, या वो भी न्यूट्रल हो सकता है जिस पे चार्ज हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो। वाई? बिकॉज देन दे विल कैंसिल ईच अदर। सो फिर भी चार्ज ना हुआ, चार्ज ना हो फिर तो ठीक है चार्ज नहीं है। लेकिन अगर चार्ज है लेकिन वो बराबर है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव है, सो दे विल कैंसिल। सो फिर भी चार्ज ना हुआ, सो दे विल न्यूट्रल। तो क्यों हम कहते हैं साल्ट इज न्यूट्रल? क्योंकि साल्ट पे चार्ज है लेकिन चार्जेस बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, इसी वजह से हम कहते हैं साल्ट्स आर न्यूट्रल, बराबर है, दैट्स व्हाई न्यूट्रल। बात समझ आ गई ना? लेकिन एक बात मैं बताऊं, चार्जेस बराबर होते हैं, साल्ट में एनायन बराबर नहीं होते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एनायन क्या होता है? जिस पे चार्ज हो। चार्ज को एनायन नहीं बोलता, आयन नहीं बोलता, चार्ज को आयन से। देखिए चार्जेस बराबर होते हैं साल्ट में, आयन्स बराबर नहीं होते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
लेकिन आयंस का मतलब चार्ज नहीं है, आयंस का मतलब वो चीज़ जिस पे चार्ज हो। तो वो चीज़ जिस पे चार्ज हो वो बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल NaCl, चार्जेस तो इसमें बराबर है, लेकिन जिस पे चार्ज है इस पे है, सो दैट इज आयंस, ये भी आयंस है। तो एक ये है, एक ये है। बात समझ आ गई ना? सो इस बार चार्ज भी बराबर है, आयंस भी बराबर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आयंस हमेशा बराबर होगा। नहीं, आयंस डिफरेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पोटाशियम सल्फेट, अब चार्जेस तो इसके बराबर है, +2 -2, लेकिन आयंस देखिए ना, जिस पे चार्ज है, आयंस ये नहीं होता, आयंस जिस पे चार्ज है वही होता है, तो वो तो इनका डिफरेंट है। तो चार्जेस बराबर होने चाहिए फॉर सॉल्ट, आयंस बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। इट इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and soluble in water. Why? Because salt is polar, water is polar, and the solubility principle is like dissolve like, which is polar, dissolve in polar solvent. And water of crystallization, water of crystallization का मतलब है कि salt के surface के साथ जितने number of water attach होते हैं, इसका water of crystallization, जहाँ इधर 5 water attach है, so 5 water of crystallization, कहीं 10 होता है, कहीं 15 होता है, 20 होता है, जितना भी हो, depend charge to size ratio. And salt और neutral, इसमें जो positive negative charges है वो बराबर होते हैं। आयंस का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चार्ज बराबर होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।